جوانو، جب انسان نزاع کے عالم میں مبتلا ہوتا ہے، جب روح آدھی اندر ہوتی ہے آدھی باہر ہوتی ہے، تو اس وقت انسان کو تین ہیبتیں نظر آتی ہیں۔ ایک، مرنے والے کو ملک الموت نظر آتا ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے پاس اچھی صورت لے کے آتا ہے، خوبصورت شکل لے کے آتا ہے۔ لیکن اگر وہ گنہگار بندہ ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، سیاکار ہوتا ہے، تو ملک الموت اس کے پاس ڈراؤنی صورت لے کے آتا ہے۔ دوسرا، مرتے وقت انسان ان دو فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہمارا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ مرتے وقت انسان ان دونوں فرشتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرتے وقت یہی دونوں فرشتے انسان کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ اگر مرنے والے کا شمار نیک بندوں میں ہوتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں میں ہوتا ہے، تو یہ فرشتے اس سے مخاطب ہو کر یہ مجدہ سناتے ہیں کہ جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، اے مرنے والے خدا تیرا بھلا کرے، خدا تیرا بھلا کرے کہ ہمارے سامنے تو نے بہت سی بندگی کی ہے، تو نے اللہ کو بھی راضی کیا، اس کے رسول کو بھی راضی کیا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا، اس کے رسول کو راضی کرتا رہا۔ اے اللہ کے نیک بندے خدا تیرا بھلا کرے۔ اور اگر مرنے والا نیک بندہ نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، سیاکار ہوتا ہے، تو یہی دونوں فرشتے اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے نادان، لا جزاک اللہ خیرا، حق تعالی تیرا بھلا نہ کرے، نہ کرے، نہ کرے، اس لیے کہ تو نے ہمارے سامنے بہت سے گناہ کیے، بہت سی تقصیریں کی، مظلوموں پر ظلم کرتا رہا، غریبوں کا حق مارتا رہا، مسجد کے نزدیک نہ گیا، قرآن کے قریب نہ گیا، ساری زندگی شیطان کی پوجا کرنے میں گزار دی، ساری زندگی غفلت میں گزار دی۔ اے مردود انسان، خدا تیرا بھلا نہ کرے، خدا تیرا بھلا نہ کرے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ ہے۔ جو شخص نیک ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، تو اسے ملک الموت کہتا ہے کہ اے خدا کے دوست، خدا کے حکم سے میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور اگر کوئی گنہگار بندہ ہوتا ہے، سیاکار بندہ ہوتا ہے، تو ملک الموت اسے کہتا ہے کہ اے خدا کے دشمن، میں خدا کے حکم سے تجھے دوزخ کی بشارت دیتا ہوں۔ جب مرنے والا دوزخ کی بشارت سنتا ہے تو اسے خوف اور رنج کے ملے جلے جذبات گھیر لیتے ہیں، نزاع کی سختی بڑھ جاتی ہے اور وہ سسک سسک کے پانی مانگتا ہے کہ مجھے پانی دو، لیکن زبان ہلنے سے قاصر ہو جاتی ہے، اس کی روح آدھی اندر ہوتی ہے آدھی باہر ہوتی ہے، کہتا ہے ہائے یا اللہ، او مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے۔ قصہ مختصر کہ اس گنہگار بندے کی روح بڑی ہی سختی سے نکلتی ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص دنیا سے نہیں نکلتا جب تک وہ یہ جان نہ لے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ مرنے والے کے لیے بات یہ بھی ہے کہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ جوانو، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، دنیا سرائے فانی ہے، ہم نے یہاں سے ایک نہ ایک دن کوچ کر جانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے۔ ابن آدم میرا مال، میرا مال، میرا مال کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لیا، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا، بس یہی تیرا مال ہے۔ میاں، زیادہ ہائے ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا سروکار۔ دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سوار گرمی کے دنوں میں سفر کرے اور کسی درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سوار ہو کر چل دیے۔ دنیا کی مثال تو یہی ہے۔ ایک دن سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضور، کیا قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کوئی اور بھی اٹھے گا؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، وہ شخص جو رات دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا رہے۔ انسان کا ہر اٹھنے والا قدم اسے موت کی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن حضرت انسان کہتا ہے میں تو بڑے نفع میں جا رہا ہوں۔ اے حضرت انسان، آج تیری زندگی کا جو دن غروب
गरूब हुआ है, ये दोबारा तुलू नहीं होगा। आज का दिन गुजर गया, अब जो दिन बाकी हैं वो गुजरेंगे। इंसान सारी जिंदगी सोचता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, और मियां लोग क्या कहेंगे, और यार लोग क्या कहेंगे। साहिब, लोग आखिर में बस यही कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ गफलत की नींद सोकर 70 साल की उम्र बर्बाद करने वाले, 70 साल की उम्र जाय करने वाले, अब तो जाग जा। और तू दुनिया में हमेशा रहने का इंतजाम तो करता रहा, लेकिन अफसोस आखिरत की कभी भी फिक्र ना की, आखिरत की कभी भी परवाह ना की। तो तुझे पता नहीं है कयामत के बाजार में नेक अमाल के मुताबिक ही मर्तबे मिलेंगे। अगर अमाल अच्छे होंगे तो जजा मिलेगी, अगर अमाल अच्छे नहीं होंगे तो फिर सजा ही सजा, फिर शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी। चलो जो हो गया सो हो गया, अब जो दिन बाकी हैं इन्हीं दिनों में अपने करीम रब के साथ अपना मामला दुरुस्त कर ले, पक्की तौबा करके अल्लाह का महबूब बंदा बन जा। अगर 50 दरहम से 5 दरहम जाय हो जाएं तो कितना सदमा पहुंचता है, कितनी तकलीफ होती है कि 5 दरहम जाय हो गए। और नादान, तूने तो 50 साल की उम्र जाय कर दी, अभी तक तुझे खुद पर अफसोस क्यों नहीं हुआ। हकीम लुकमान ने कहा था कि गुनाहों वाली जिंदगी जीने से तो बेहतर है बंदा मर जाए, क्योंकि मरना कोई जुर्म तो नहीं है। ए बंदे, अगर मुर्दा बोल सकता होता तो चीखे मार मार के तुझे बताता कि होंठों को जिक्र इलाही से बंद रखने का नुकसान क्या है। एक बूढ़ा चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, दौड़ता हुआ एक हकीम साहब के पास आया, आकर कहता है, हकीम साहब मुझे देखिए, मुझे क्या हो गया है। ऐसे लगता है जैसे मेरे पाँव कीचड़ में फंस गए हों, और जैसे मेरे पाँव कीचड़ में फंस गए हों। ये सुनकर हकीम साहब ने कहा, बाबा जी अब दुनिया से हाथ उठा ले, इसलिए कि इस कीचड़ से तू कयामत को ही निकलेगा। जिस कीचड़ में तेरे पाँव फंसे हैं, जिस बीमारी में तेरे पाँव फंसे हैं, अब दुनिया से अपना हाथ उठा ले, अब अपने करीम रब के साथ अपना मामला दुरुस्त कर ले, इसलिए कि इस कीचड़ से तू कयामत को ही निकलेगा। जवानों, ये दुनिया जिसकी मोहब्बत में हम गर्क हैं, जिसके इश्क में हम फना हैं, जिसकी खूबसूरती और चमक धमक से हम मुतासिर हैं, जिसको हासिल करने के लिए ना हम दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, न सर्दी देखते हैं ना गर्मी देखते हैं। जवानों, तुम्हें पता है कि इस दुनिया की हकीकत क्या है? इस दुनिया की हकीकत क्या है? मेरे अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि लोगों, दुनिया खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं। दुनिया खेल है, दुनिया तमाशा है। ये है दुनिया की हकीकत कि दुनिया खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं है। दुनिया फानी है। किसी ने सच कहा था कि दुनिया की ये जिंदगी सुपर मार्केट की तरह है, इसमें घूमिए फिरिए, जो चाहे खरीद कर ट्राली भर लीजिए, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए कि कैशियर के पास भी जाना है, इन चीजों का हिसाब भी देना है। यही मिसाल इस दुनिया की है। जवानों, ये दुनिया जिस पर हम फरेफ्ता हैं, इसको रेत से तशबीह दी गई है, रेत से तशबीह दी गई है, जिसको प्यासा शख्स दूर से पानी समझता है और इसकी तलब में दौड़ता भागता चला जाता है, और जब ये प्यासा इंसान इसके पास पहुंचता है तो वो रेत के सिवा कुछ नहीं पाता, रेत के सिवा कुछ हासिल नहीं करता, यहाँ तक कि भागता दौड़ता वो प्यासा ही मर जाता है। जवानों, यही हाल इस दुनिया का है कि हजरत इंसान इस दुनिया को हासिल करता करता मर ही जाता है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्ने आदम मेरा माल मेरा माल मेरा माल ही करता रहता है, मगर आए इब्ने आदम, तेरा माल सिर्फ वही है जिसे तूने खाकर हजम कर लिया, तेरा माल सिर्फ वही है जिसे तूने पहनकर बोसीदा कर दिया और सदका देकर साथ ले गया, बस यही तेरा माल है। ज्यादा हाय हाय करने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा दुनिया के पीछे भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया के पीछे भागोगे तो मारे जाओगे, दुनिया की मोहब्बत अपने दिल में रखोगे तो मारे जाओगे। जिस शख्स के दिल में दुनिया बस जाती है, उस शख्स के दिल में अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत कभी आ ही नहीं सकती। जवानों, अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत बसाना चाहते हो, अगर दिल में उसके रसूल की मोहब्बत बसाना चाहते हो, तो फिर दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालना ही पड़े। हजरत हसन बसरी की एक मुरीदनी थी, उसका एक बेटा था जो बहुत ही गुनहगार था, बदकार था, सियाकार था,
शराबी था, जानी था। दुनिया में कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो उसने ना किया हो। सारी जिंदगी उसने गफलत में गुजार दी। सारी जिंदगी वो अपने करीम रब को एक सजदा भी ना कर सका। आए जिंदगी का सूरज ढल गया, जिंदगी औखी शौखी गुजर गई। जब जिंदगी की आखिरी सांसें आई, ये नौजवान बीमार हो गया। इतना बीमार हुआ कि मौत के साए मुंडलाने लगे। पक्का यकीन हो गया कि अब मैं नहीं बच सकता। वो देखो मौत का फरिश्ता नजर आ रहा है। इसे भी पता था कि मैं कितना गुनहगार हूँ, कितना बदकार हूँ, कितना सियाकार हूँ। इसने अपनी बूढ़ी माँ को कहा, माँ मैंने सारी जिंदगी गफलत में गुजार दी है, सारी जिंदगी गफलत में डूबते हुए बर्बाद कर दी है। अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। एक काम तो कर, जा अपने पीर हजरत हसन बसरी के पास, उसे जाके कहे कि मेरा बेटा मरने से पहले पहले आखिर में अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश आपकी बारगाह में रख के गया है। वो ये है कि मेरा बेटा चाहता है कि मेरे मरने के बाद आप ही आएंगे, मेरा जनाजा पढ़ाएंगे। अम्मा जी, जब हजरत हसन बसरी जनाजा पढ़ाने आएंगे तो ये भी जाहिर है कि उसके साथ उसके मुरीदीन और मोतक़िदीन भी आएंगे, और बाकी नहीं 2-4 बंदे इकट्ठे तो हो जाएंगे। नहीं तो मैं गुनहगार हूँ, बदकार हूँ, सियाकार हूँ। अगर मैं ऐसे ही मर गया तो कोई भी मेरा जनाजा पढ़ने नहीं आएगा। ये बूढ़ी माँ उठी, दौड़ते हुए भागते हुए गई अपने पीर के पास। हजरत हसन बसरी का जाके दरवाज़ा खटकाया। हजरत हसन बसरी बाहर निकले। हाँ बुढ़िया, कहा हजरत आपकी बारगाह में एक छोटी सी अर्जी लेके आई हूँ। मेरा बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, वो अभी मरने वाला है। उसकी ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा आप ही पढ़ाएंगे। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, ओहो बुढ़िया, मैं तो तेरे बेटे का जनाजा हरगिज नहीं पढ़ाऊंगा। तेरा बेटा गुनहगार है, बदकार है, सियाकार है, गंदा है, खलीज है, शराबी है, ये है वो है। उसने सारी जिंदगी अपने करीम रब की जात को एक सजदा भी नहीं किया। मैं तो उसका जनाजा हरगिज नहीं पढ़ाऊंगा। ये सुनते ही बुढ़िया रोती हुई चीखती हुई वापस अपने घर में आई। देखा बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। जाकर कहा, बेटे काश कि अगर तूने जिंदगी में एक अच्छा अमल भी किया होता, एक नेक अमल भी किया होता, आज मेरे पीर और मुर्शिद तेरा जनाजा पढ़ाने से इनकार ना करते। बेटे तूने सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी। मुर्शिद के जनाजा ना पढ़ाने की खबर सुनकर ये गुनहगार शख्स मरते हुए बोला। कहा, माँ मुझे एक बात तो बता। कहा, जी बेटे मैं कुर्बान तेरी जवानी पर। कहा, माँ मिसाल के तौर पर मेरे मरने के बाद अगर अल्लाह ताला तुझे एक पल के लिए मोहलत दे भी दे कि ऐ गुनहगार की माँ, अगर तू चाहे अपने बेटे को जन्नत में भेज दे और अगर तू चाहे अपने बेटे को जहन्नम में डाल दे तो तू क्या पसंद करेगी। माँ रो कर कहने लगी, बेटे अगर अल्लाह मुझे एक पल के लिए भी मोहलत दे दे, मैं तो फौरन ही जन्नत के दरवाजे खोलकर तुझे जन्नत में डाल दूंगी, फौरन ही तुझे जन्नत में भेज दूंगी। ये सुनकर बेटा रोते हुए बोला, माँ तू एक माँ जितना प्यार करती है, तू एक माँ जितनी मोहब्बत करती है, मुझे जहन्नम में डालना गवारा नहीं करती। और जो रब मुझसे 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो मुझे जहन्नम में कैसे डाल सकता है। ये कहते ही उस शख्स की रूह परवाज कर गई। उधर से हजरत हसन बसरी सोए हुए थे। ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ओ हसन बसरी तू यहाँ सोया हुआ है, और जा मेरा यार फोत हो गया है, जाके उसको गुस्ल दे, उसको कफन दे, उसका जनाजा पढ़ा। अर्ज की, वो कौन सा यार? किसी कहने वाले ने कहा, तेरी मुरीदनी का बेटा, वो जो गुनहगार था, बदकार था, सियाकार था। ओहो वो तो शराबी था, वो तो जानी था, आपका यार कैसे बन गया? कहा, यार इसी वजह से बना है, वो जन्नत का हकदार इस वजह से बन गया है कि मरते वक्त उसकी जुबान से एक जुमला निकला है कि मेरा रब मुझसे 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह अकबर, 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला। वो गुनहगार शख्स मेरे करम का सहारा लेते मरा है, वो गुनहगार शख्स मेरी रहमत का सहारा लेते मरा है। और जो गुनहगार भी
جو شخص بھی میری رحمت کا سہارا لیتا ہے، میرے کرم پہ نظر رکھتا ہے، میری رحمت پہ نظر رکھتا ہے، تو پھر میں اپنی رحمت کے صدقے اسے بخش نہ دوں، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ ہے خشیت الہی میں آ کر خوف کی وجہ سے آنکھوں میں سے ایک آنسو نکلا تھا، ابھی ایک آنسو زمین پر نہیں گیا تھا، اللہ نے اس کی بخشش پہلے فرما دی۔